اور کوئی چیز اگر لیں تو اس پہ ہاتھ ہلے نا، یہی کہیں کہ بس لگتا ہے کہ اب ہاتھ ہل رہا ہے اور دل ہل رہا ہے، اتنے پیسے، سمجھ لیں کہ اب فیصلہ میرے حق میں خیر کا، برکت کا، راحت کا، رحمت کا، عفو کا، عافیت کا، دولت کا، تمنگری کا، خوشحالی کا اور مال کا اور چیزوں کا اور نعمتوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیر۔ جس وقت دل ہلے اسی وقت فیصلہ ہو جائے۔ کیا خیال؟ کیسا زبردست عمل ہے، کیسا زبردست عمل۔ ہماری زندگی میں ہمیں مال سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، اور مال جو ہے وہ کبھی لینے سے نہیں بڑھتا، ہمیشہ دینے سے بڑھتا ہے، کبھی بھی لینے سے نہیں بڑھتا۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، امید ہے آپ کو میری بات یاد ہوگی، کہ جو مال کسی کی جیب سے لیا جائے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، نہیں رہ سکتا۔ جو اللہ کے خزانوں سے لیا جائے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وہ نہیں جا سکتا، وہ نسلوں کے کام آتا ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، اور نسلیں بڑھیں گی، پنیں گی، پنپیں گی، پھلیں گی، پھولیں گی، اور نسلوں کو اللہ پاک ایک وجود عطا فرمائیں گے، برکتوں کا، دولتوں کا، عزتوں کا، صحتوں کا۔ آج صبح میرا یہاں درس تھا، صبح میں فجر کی نماز یہاں، تو میں نے صبح کچھ لوگوں سے پوچھا، اللہ کے محبوب یہ بندے درویش مسافر آئے ہوئے تھے، آ رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ کون ایسا بندہ ہے جس نے 2.5% نکالا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، 2.5% نکالا ہو اور وہ غریب ہو گیا۔ ہر بندے نے بتایا کہ میں مالدار ہو گیا۔ ایک مزدور نے بتایا، مجھے اس مزدور کے حالات کی خبر ہے، کتنی غربت، تنگ دستی، سفید پوشی، لیکن وہ نیک نیت ہے، اس نے مجھے بتایا، سب کو کھڑے ہو کے بتایا کہ ہم نے ایک پلاٹ لیا اور 5 لاکھ، میرا ابا کہنے لگا پیسے کہاں سے لے آیا تھا؟ ابے نے ساری عمر 5 لاکھ نہیں دیکھے کہ 5 لاکھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا ابا 5 لاکھ 2.5% نکالنے سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ کیسے آیا؟ کس طرح آیا؟ 2.5% نکالنے سے آیا۔ اپنی تنخواہ آئے اسی وقت 2.5% نکال کے ایک طرف رکھ دیں، پیسے آئے 2.5% نکال کے ایک طرف رکھ دیں۔ ایک صاحب نے کھڑے ہو کے بتایا، میں نے یہ بات درس میں کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو نے کہا کہ میں نے موٹر سائیکل لی اور اس کا 2.5% نکال دیا، جتنے کی لی، 50 60 70 ہزار جتنے کی بھی لی، اس کا 2.5% نکال دیا۔ آج تک موٹر سائیکل بھولا ہوں، چابی اندر ہے اور ایسی جگہ پہ جہاں کے رہ نہیں سکتی، میری موٹر سائیکل کو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، دیکھا ہی نہیں، نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہم قیمتی سے قیمتی چیز لے لیں گے، جب 2.5% کا وقت آتا ہے دل بڑا ہلتا ہے، کر لو تجربہ، بڑا دل ہلتا ہے، سارے پیسے لگا لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے، اس کا حساب بنائیں گے، 1000 میں سے 25 روپے دینے ہوں گے، اور لاکھ میں 2500، اور کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے۔ اوئے ہوئے، یہ چیز ایسی ہے، ایک بات میں نے آپ سے عرض کی تھی، میرا درس موجود ہے نیٹ پہ، آپ دیکھیں گے، میں نے عرض کیا تھا کہ صدقہ وہ کریں جو دل کو ہلا دے، وہ صدقہ کریں جو دل کو ہلا دے، وہی جا کے عرش کو ہلا دے گا، اور جب عرش ہلے گا فیصلے آپ کے حق میں ہو جائیں گے۔ مظلوم کی عرش کو تو ہلاتی ہے، ماں کی دعا عرش کو تو ہلاتی ہے، اور باپ کی بد دعا عرش کو تو ہلاتی ہے، اور غریب کی اچانک آہ اس کو خوش کر دینے سے عرش تو ہلتا ہے، اس عرش کے ہلنے سے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہاں، عرش کے ہلنے سے اللہ فیصلے کر کے دکھا دیتا ہے۔
आप वो सदका करें जो आपको हिला दे, हिला दे। फिर देखें फैसले आज से होते हैं या नहीं होते। और ये जो 2.5% है ना, बंदा चीज ले लेता है, बाज़ औक़ात कहीं से उधार पकड़ के कोई चीज ले ली, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, सवारी ले ली, कोई भी चीज ले ली, कोई भी चीज ले ली, कोई भी चीज ले ली। वो चीज लेने के बाद कहता है कि या अल्लाह 2.5%, अब 2.5% पे हिसाब बैठ के करता है और सारे कैलकुलेटर घिसा देता है, तो यहां दिल हिलता है। मेरा घर छोटा सा है, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह खाना बड़ा बनाने का फिक्र किया, घर बनाने का फिक्र नहीं किया। बच्चे बड़े हैं, मैं अल्लाह से मांग रहा हूं मैं कि अल्लाह बड़ा घर दे दे। मैंने अल्लाह को 2.5% घर का उठा के पहले दे दिया है, दे दी। मैंने कहा अंदाजा इतने का घर आएगा, तो मैंने कहा चलो जो इतने घर के पैसे जब आएंगे 2.5% के पैसे तो हैं। मैंने पहले से अल्लाह को 2.5% दे दिया, अब अमाल कर रहा हूं मैं कि अल्लाह दे दे, और मुझे यकीन है मेरा अल्लाह दे देगा इंशाअल्लाह। कभी भी जिसको दुनिया में देखो उसको बस बख्त है, माल है, तवंगरी है, और उसके बाद फिर सुकून भी है। समझ लेना कि ये रिस्क वो है जो अल्लाह के खजानों से मिला है। रिस्क है और सुकून है, रिस्क है और आंखों में चमक है, रिस्क है और मुंह पे रौनक है और चेहरे पे रानाई है, और अल्लाह के साथ मोहब्बत और प्यार का राज और नियाज है। ईरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको रिस्क मिला, सब कुछ मिला, फिर अल्लाह से गिड़गिड़ाते थे, मांगते थे। हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी अरब खरब पत्ती थे, लेकिन अल्लाह से गिड़गिड़ाते थे और मांगते थे। बड़े बड़े सहाबा, आले रसूल, अहले बैत, उनके पास माल था, अल्लाह से गिड़गिड़ाते थे और मांगते थे। मजा तो है इसी में, छीनने के बाद तो रोना सबको आ जाता है। छीन जाए रोना आता है, असल तो मजा यह है कि छीनने से पहले रोना आ जाए, जब हो और मांगने का मिजाज अल्लाह के खजानों से बन जाए। या अल्लाह तू देगा, अपने खजाने गैब से देगा, और अल्लाह तू ही देगा, अल्लाह मुझे दे दे। अगर माल बढ़ाना चाहते हैं और अल्लाह के खजानों से लेना चाहते हैं, मैं आज सबक दोहरा रहा हूं, अल्लाह को देना शुरू कर दें, और देने की इब्तिदा अपने रिश्तेदारों से करना। ऐसे रिश्तेदार जो गरीब हों, सफेद पोश हों और सवाल ना करते हों। ये गली मोहल्लों और चौराहों में और गाड़ियों ट्रेनों में ये सवाल करने वाले तो इनके बड़े बड़े बैंक बैलेंस होते हैं, और इनके पते उस वक्त लगते हैं जब नोट तब्दील होते हैं। हां, जब नोट तब्दील होते हैं फिर बोरियां इनके कंधों पे होती हैं। मांगने वाला तो अपना घर पूरा नहीं करता, वो तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता है। जो सवाल नहीं करता था, सफेद पोश आदमी है, जिसकी इज्जत नफ्स उसे कहती है सवाल न कर, उसको तलाश करना। जो सड़कों पे कपड़ा लगा दे, आपकी ज़कात लेती हैं, सड़कों पे इश्तिहार लगा दें और कहें हमें अपनी ज़कात दो, पता नहीं कहां जाती है, और अक्सर वही ज़कात लेके बैंक पे रख फिर उसका सूद होता है। ऐसे बंदे तलाश करें, और सबसे पहले अपने रिश्तेदार। कुरान की तरतीब है वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और चौथे नंबर पे परदेसी ही मुसाफिर है, उनको तलाश करें और उनको ये माल दें, और ऐसे अंदाज से दें उनकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। माल भी दें और उनको उनका एहसान हो कि उन्होंने कबूल किया। जो यार फरीद कबूल करे, सुल्तान भी तू सरकार भी तू, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने कबूल किया। ऐसे अंदाज से दें। 2.5% निकालें, मजा ही और है। यकीन जानिए, कितने बंदे बैठे हैं जो 2.5% निकालते हैं? हाँ, हाथ हैं, उठे हैं, लेकिन इतने सारे हैं। वो बचपन में ना, वो उस्ताद जी डांटते थे तो हम एक दूसरे को बताते थे, कहने लगे उस्ताद जी ने तुझे मारा था, कहने लगे कितना करे, इतना सा मारा था।
वह तुझे मुझे कहे इतना सा मारा था। तो अभी इतना सा है, और इतना सा हो जाए, सारा मजमा कहे अल्लाह मेरी आवाज को पूरी दुनिया में लाइव पहुंचा रहा, पूरी दुनिया सुन रही, ये सारी दुनिया कहे कि हम फैसला करते हैं अपने माल में से 2.5% निकालेंगे, पर वो ज़कात नहीं होगी। ज़कात अपनी जगह पे मौजूद है, करके देखें। मुझे उस दिन एक बंदा कहने लगा कि मैं 5% पे आ गया हूं। मैं क्यों? कहने लगा वो जरा बढ़ गया था ना, मैंने कहा फिर और बढ़ा। समझ नहीं आई ये बात, कैसे समझ ना आया आपको? ये देख गाले था कहनी भाई ये बात कैसे समझ ना आए? कहने लगे 5% कर दी है, अब 5% देता हूं। उन्होंने कहा हाई साहब खैरियत कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा अल्लाह लब्बैक, एक बिस्तरा तो एक बैग। उन्होंने कहा जब सऊदी अरब पहुंचा, उन्होंने कहा बैग लब्बैक और बैग, अल बैग ब्रोस्ट वहां होता है। और मुझे एक साहब कहने लगे कि अल बैग के मालिक ने हर डब्बे पे तय किया है कि 1 रियाल अल्लाह के लिए। जब काम चल पड़ा, वो मर गया, तो बेटू ने कहा अब 2 रियाल, हर डब्बे पे 2 रियाल। 10 रियाल का डब्बा है, 12 रियाल का है, 15 रियाल का है, 2 रियाल उसमें से उठा के अल्लाह के लिए दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी 1991 से मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है, शायद मेरी याददाश्त अगर ठीक है, 91 से लेकर आज भी मैं 2.5% निकाल रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के साथ मामला करके देखो तो सही। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, आओ अल्लाह से तिजारत करो, अज़ाबुन अलीम, टेंशन से अल्लाह बचाएगा, एंग्जाइटी से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा। और अज़ाबुन अलीम में यह बात शामिल है कि औलाद खराब हो जाए, नशे पे लग जाए, शीशे पे लग जाए, और औलाद बेराह रवी का शिकार हो जाए, बीवी नाफरमान हो जाए, घर का सुकून गारत हो जाए, और जिंदगी में बेचैनी हो, यह अज़ाबुन अलीम है। मेरा अल्लाह कहता है मुझसे तिजारत करो, आओ मुझसे राह और रस्म बढ़ाओ, अज़ाब अलीम खत्म कर दूंगा, और मुझे दो, मैं तुम्हें लौटा के दूंगा, मुझसे बड़ा गैरत वाला कोई नहीं है। शादी थी, शादी, ये हार होते थे ना, नोटों वाले हार, अब भी हैं, कम है। तो उसने ना अखबार के अंदर हार बंद होता था, उस वक्त अखबार फाड़ते हैं और उसका जलवा होता है। और फिर एक और भी होता है, शादी के बाद मिलते मिलते नोट उसमें से एहतियातन निकाल लेते हैं बड़ा सा। तो उन्हें कहा ये आया है ना, इसके पास बड़ा बड़ा नोटों वाला हार होगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा इसने कहा है कि मेरी बेटी की शादी थी, मेरे दामाद को लोगों ने बड़े नोटों के हार पहनाए थे, अगर किसी ने 5-10 हजार का पहनाया था, डाला था, तो मैं 20,000 का डालूंगा, मैं किसी का एहसान नहीं, उसको झुकता दूंगा। ये तो बंदा है, अल्लाह क्या करेगा? ये तो बंदा है। वो कहता है उसने हार डाला था बड़ा, मैं उससे डबल का डालूंगा। वो ये ना कहे कि मैंने तेरे दामाद के गले में ये हार डाला था इतने हजार का, बल्कि मैं कहने वाला बनूं कि अगर तूने डाला था तो मैंने भी उसके बदले में यह कर दिया था। अल्लाह से बड़ा कौन होगा? वो एहसान, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। मेरे बंदो, मुझ पे एहसान करो, और हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। अल्लाह को क्या परवाह है हमारे माल की चीजों की, 2.5% की? मेरे रब को क्या परवाह है? वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, उसके पास तो जमीन और आसमान के सारे खजाने हैं ही उसी के पास। अल्लाह को दे के अल्लाह से लें, गैरत वाला है। कायनात में सबसे बड़ी हया मेरे रब के पास है, जहां से हया कायनात को मिली है। कायनात में रब के पास सबसे ज्यादा गैरत है। अल्लाह से लें, अल्लाह को दें,
अल्लाह को लें, अल्लाह को लें, अल्लाह को देकर। बात समझे मेरी बात को, अल्लाह को लें, अल्लाह को देकर। इस नियत से निकालें 2.5%, मौला तू मेरा हो जा और अपने हबीब का इश्क सच्चा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जब मेरी मैयत उठे, तेरे फरिश्ते मेरे मैयत में शामिल हों और कंधा दें और एक ऐलान हो किसी आशिक का जनाजा जा रहा है। अल्लाह दे और अपने खजाने में से दे और अपने खजाने में से अता कर। अल्लाह से सौदा तो करके देखें, चुपके से 2.5% निकालें और पैसे निकाल के एक तरफ रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं। वो कहने लगा, सुबह आज एक बंदा कहने लगा, मैं आप निकाल के रख रहा हूं और रमजानुल मुबारक में मैं गरीबों को तलाश भी कर रहा हूं, रख भी रहा हूं, और रमजान शरीफ में मैं लोगों को दूंगा। जरूरी नहीं जब जरूरतमंद मिले दे दो। और एक चीज और है कि अचानक किसी की खिदमत कर देना और उसका दिल खुश कर देना, अचानक उसके गुमान, उसके ख्याल, उसके एहसास, उसके इदराक में भी ना हो, अचानक उसको खुश कर देना, इस पे अर्श इलाही हिल जाता है। और इस पे एक फैसला होता है क्या, और वो फैसला वो है जो अल्लाह की सबसे बड़ा आखिरी फैसला है रब का, और वो फैसला ये है कि मेरे बंदे जा, तुझे मैंने माफ कर दिया और इसका बदला जन्नत है। बड़ा आखिरी फैसला है। सारी उम्र के मुजाहिदे, कोशिशें, मेहनतें, सारी उम्र के पोहरिए, खटिया वटिया, आखिर मगफरत उसकी रजा है। और इस काम पे कि जब बंदे को बंदा अचानक खुश कर दे, इस पे मेरा रब कहता है जा, इसका बदला जन्नत और मगफरत है। जिस अचानक खुश करने पे इतनी बड़ी जन्नत मिलती है, उस अचानक खुश करने पे रब की मोहब्बत, दुनिया का ताल्लुक, मसाइल का हल, मुश्किलात का हल, परेशानियों का हल कैसे नहीं होगा। किसी रिश्तेदार किसी बंदे को अचानक ऐसे खुश कर देना। एक साहब मुझसे कहने लगे, मैं अपने रिश्तेदारों के घर गया। जब मैं उनके घर गया तो मैंने उनके घर के हालात देखे और बातों बातों में मैंने हालात उनसे टटोले, लेकिन उन्होंने छुपाने की कोशिश की। कहने लगे, मैंने उनके हालात देखे ना, तो मैंने कहा कि मुझे इजाजत दें, मैं अपने मेरे भतीजे हैं, भांजी हैं, इनके लिए कोई गिफ्ट भेजो। कह रहा नहीं, आपका आना काफी है, बहुत है, इसके लिए इतने सूट हैं, इसके इतने कपड़े हैं, यूं है वो। उन्होंने कहा इजाजत दे दें थोड़े सा। बड़ी मिन्नत से मैंने उनसे इजाजत ली। फिर उनके सूट बनाए, साथ बहुत पैसे रखे, उनको भेजे, और उनके घर में तशवीश शुरू हो गई कि भाई शरीक हैं, रिश्तेदार हैं, कल फिर हम वापस कैसे दे सकेंगे। ये वापसी का मामला तो शरीक है, वापस कैसे करेंगे। अब उनको ये टेंशन, उन्हें पता है रिश्तेदारों को पर वापस करना पड़ता। लगा बड़ी मुश्किल से मैंने उनको राजी किया। उसका तरीका ये किया, फिर और हदिया भेज दिया, और हदिया भेज दिया, और भेज दिया। और वो एक हदिया वापस लेके आ गया कि हमसे नहीं चला जाता, हमारी इतनी कमर साथ नहीं देती, फिर हम कल को, फिर उन्हें कि कल को नहीं है, या आज को है, भूल जाओ। कदम बढ़ाएं तो सही 2.5% के नाम पे, यकीन जाने। और मैंने एक बैंक में देखा, ऐसे एक हाथ ले रहा, एक हाथ दे रहा, ऐसे फोटो था, एक खिड़की थी, उसमें से हाथ निकला हुआ, तो उसमें बड़े बड़े नोट थे, और दूसरा हाथ दे रहा। मैं क्या बिल्कुल ठीक है। अल्लाह के साथ बिल्कुल यही मामला है। नौनिहाल के ना, ये हमदर्द का नौनिहाल है, इसमें बच्चा होता है, सारी दुनिया का ग्लोबल उसने कमर पे उठाया होता है, नौनिहाल है ना, वो तो सारी दुनिया का नक्शा होता है, वो एक गेंद नुमा होता है, उसने ऐसे कमर में उठाया हुआ होता है। उन्हें कहा ये पिलाओगे तो बच्चा ऐसे हो जाएगा। सारी दुनिया को देखो, ये कंधा देगा। हकीम सईद साहब नेक आदमी थे, अल्लाह वाले थे, सच कहा। ये खिड़की वाली कहानी बेहतरीन है। ऐसे पैसे ना उसके हाथ में, मैंने ऐसे देखा बैंक में कहानी, मैं कहा बिल्कुल ठीक है, इधर अल्लाह को दो और इधर ले लो। और मेरे रब को पता है ये अपना मोबाइल लेते हुए कितना पैसा लगाते हैं, जूती लेते हुए कौन सी ब्रांड लेते हैं, अपने पैसे फलां चीजों के लिए कौन से पैसे लगाते हैं।
اب میرے مال پہ اپنے مال میں میرے لیے نکال رہے ہیں، بڑا کریم ہے۔ اللہ کہتا ہے فتنوں کے دور کا بندہ ہے جس نے پیدا ہونے سے لے کر موت تک نہ صحابہ کو دیکھا، نہ اہل بیت آل رسول کو دیکھا، نہ جنید بغدادی اولیاء صالحین کو دیکھا۔ اس نے سارا باطل اور سارے فتنے دیکھے ہیں۔ اس کی نیکی یہی قبول کر لو فرشتوں، اس کو ابھی دے دو۔ بڑا کریم ہے، رحمت کی شفقت کی عطاؤں کی ایسی وسعت پھیر دیتا ہے، کرے جاؤ۔ تو 2.5% کا ہاتھ بڑھائیں، اور کوئی چیز اگر لیں تو اس پہ ہاتھ ہلے نا، یہی کہیں کہ بس لگتا ہے کہ اب ہاتھ ہل رہا ہے اور دل ہل رہا ہے، اتنے پیسے سمجھ لیں کہ اب فیصلہ میرے حق میں خیر کا، برکت کا، راحت کا، رحمت کا، عفو کا، عافیت کا، دولت کا، تمنگری کا، خوشحالی کا، اور مال کا، اور چیزوں کا، اور نعمتوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر۔ جس وقت دل ہلے اسی وقت فیصلہ ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ کیسا زبردست عمل ہے، کیسا زبردست عمل۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔